As Mendel found the phenotype of F1 heterozygote T small t to be exactly like the capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other and hence is called the dominant factor, while the other factor is called रिसेसिव फैक्टर। तो इस तरह से मेंडल ने हेट्रोजाइगोट की कंडीशन में उसकी फिनोटाइप को नोट किया और बताया कि ये बिल्कुल कैपिटल टी पेरेंट जैसा ही टॉल प्लांट है, अर्थात यहाँ कैपिटल टी एक डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि अदर जो दूसरी स्मॉल टी है वो एक रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव एलेल्स है, अर्थात ड्वार्फनेस कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ along with tallness. In this case, capital T is dominant over small t. That is recessive. He observed identical behavior for all the characters or traits that he studied. It is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabet symbols to remember this concept of dominant and recessive. Don't use capital T for tallness and D for dwarfness because you will find it difficult to remember whether T and D are alleles of the same gene or the same character or not. Alleles can be similar as in case of homozygous कंडीशन में ये दोनों एलेल्स सेम होती हैं, जबकि डिसिमिलर कंडीशन में ये हेट्रोजाइगोट होती है, अर्थात हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये टी स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, जबकि होमोजाइगस कंडीशन में या तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होती है या फिर स्मॉल टी से। Since the T small t plant is heterozygous for genes controlling one character, it is monohybrid, and the cross between capital TT and small tt is a monohybrid cross. और क्योंकि टी स्मॉल टी प्लांट ये हेट्रोजाइगस है, किसके लिए? फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, ये केवल एक कैरेक्टर यानी कि हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हेट्रोजाइगस जीन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। और ये क्रॉस जो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच होता है उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। From the observations that recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plants produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. This segregation of alleles is a random process, and so there is 50% chance of a gamete containing either allele as has been verified by the results of crossing. In this way, the gametes of the tall plant
have the allele capital T and the dwarf plant. The gamete of the dwarf plant small t, जो कैपिटल टी टॉल प्लांट है उसके गैमेट्स में हमेशा कैपिटल टी एलएल्स होती है, जबकि जो ड्वार्फ प्लांट हैं उसके गैमेट्स में हमेशा स्मॉल टी एलएल्स होती है। एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और जब दोनों एलएल्स फ्यूज होती हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक ही पेरेंट्स में जब आती हैं तो वो टी स्मॉल टी यानी कि वो जो है एक हाइब्रिड कंडीशन शो करती हैं। तो इस तरह से since these hybrid contains alleles which express contrasting traits, the plants are heterozygous। और क्योंकि हाइब्रिड कंडीशन में उस प्लांट में दोनों ही एलल्स होती हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की दोनों ही एलल्स उसमें हैं, तो इसलिए हम उस प्लांट को हेट्रोजाइगस कहते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square। तो इस तरह से हम पुनेट स्क्वायर के द्वारा उनके जो गैमेट्स बनते हैं F1 और F2 जनरेशन के प्लांट्स के, उनको आसानी से समझ सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेग्नाल्ड पी सी पुनेट, और ये ब्रिटिश जेनेटिक्स पुनेट्स के नाम पर यह डेवलप किया गया है। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन to calculate the probability of all possible genotype of offspring in genetic cross. The possible gametes are written on two sides, usually the top row and left columns. All possible combinations are represented in boxes below in the squares, which generates a square output form. This is the Punnett square. When we see this cross, it is the tall pea plant and it is the dwarf pea plant. It produces one type of gametes and contain capital LL, capital TLL, whereas this plant produce only small TLL gametes, and when these gametes they represent the T small t यानी कि सभी प्लांट T small t जीनोटाइप लिए हुए हैं, तो कैपिटल T यानी कि डोमिनेंट एलएल्स रिसेसिव को एक्सप्रेस करने नहीं देता, इसलिए इस पहली जनरेशन में सभी प्लांट टॉल हैं। और जब हम इन टॉल प्लांट की सेल्फिंग कराते हैं तो ये दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, एक कैपिटल टी कंटेनिंग और दूसरा स्मॉल टी कंटेनिंग। जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो हमें तीन तरह के जीनोटाइप प्राप्त होती हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से जिस जाइगोट में कैपिटल टी एलएल्स है
वो टॉल रिप्रेजेंट होता है, और जिसमें कैपिटल टी नहीं है वो ड्वार्फ होता है। अर्थात F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट प्राप्त होता है। अर्थात इसकी जो फिनोटाइप है वो 3:1 है। जबकि जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप वो 1:1, अर्थात 1 कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट, 2 टी स्मॉल टी यानी कि हाइब्रिड टॉल प्लांट, एंड 1 स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ